Hey young physics learner, welcome to my class. This is class 12th physics and I was explaining you some topics of electromagnetic wave. So whatever be the total topics given in this chapter, this is chapter number 8 of NCERT first book. These are the 5 topics. Out of these 5 topics, I discussed Maxwell equation and displacement current in my first lecture, and in my second lecture I have explained origination of electromagnetic wave. Now what is the topic today? That is properties of electromagnetic wave. So today I am going to share you the 10 properties of electromagnetic wave, which is the base of the next 2 unit of second book of NCERT, that is optics. Optics carries 2 chapters, and that 2 chapters, that total marks for optics is 14 in board examination, and these 14 marks is divided equally in the 2 chapters, that is the particle nature, the first chapter of NCERT second book, and the wave nature of light wave. तो जो लाइट वेव है दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ. पर उससे पहले आपने 10 प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रिव्यू करना है. वो प्रॉपर्टीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी यूज्ड इन कम्युनिकेशन. ओके, and as well as you will come to know about the nature of electromagnetic wave, the character of electromagnetic wave, that means the propagation of electromagnetic wave. This topic is somewhat similar to the chapter which is given in class 11 physics, oscillation and waves. That was the chapter, last chapter in NCERT book for class 11th. तो उससे काफ़ी कुछ similar लगेगा, ठीक है. और ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको अच्छे से सुनना, फोकस होकर के सुनना. इससे पहले के 2 टॉपिक में 3 टॉपिक ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, और इन टॉपिक्स को रिव्यू करने के बाद ही आप इस टॉपिक पर आना, तभी आपको समझ में आएगा. क्लियर? तो सबसे पहले मैं 5 प्रॉपर्टीज़ बोर्ड पे लिख देती हूँ और उनको 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन हेडिंग इज़ व्हाट? प्रॉपर्टीज़ ऑफ EM वेव्स. क्लियर? अब EM वेव्स मैंने आपको पहले भी बताया था दैट एग्जाम्पल्स आर लाइट वेव. द बेस्ट एग्जाम्पल इज लाइट वेव. मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर देयर लाइक एक्स रे, UV रेज एंड गामा रेज, IR रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, short radio waves, long radio waves, television rays, and every these kind of communication means the longest wavelength range are used in the communication purpose because they exhibit some properties that I'm going to discuss here in this topic. So properties of electromagnetic wave, write down first of all 5 properties and 1 by 1 I will explain that properties. So first property, note it down, okay, along with me. First property, that EM wave exhibit electric and magnetic waves perpendicular to each other and perpendicular to direction of propagation. Propagation word you heard in class 11th oscillation and wave chapter. Propagation means what? To move forward in the forward direction in a line, that is propagation, proper propagation. So this one is the first property. अभी आप लोग लिख लो इसे, मैं 1 by 1 प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ठीक है. नाउ कम टू सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट velocity of electromagnetic wave is given by V is equal to omega by K. Now what is omega? Omega is angular frequency and K is known as wave number. वेव नंबर इसका दूसरा नेम भी है, इसको कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट. ठीक है.
So this one is the second property. Note it down. I will explain and I will prove this formula. Third property. Third property is that the velocity of EM wave in equilibrium condition can also be represented by V is equal to E by B, electric field divided by magnetic field, and that V is equal to under root of 1 over epsilon mu. इसी को अगर हमें C फॉर्म में लिखना है, if this one is the velocity of electromagnetic wave and if we are representing the velocity of electromagnetic wave in free space, then it is represented by C equal to the speed of light. Okay, so that C is equal to under root of 1 over mu naught epsilon naught. Mu and epsilon here for the V and mu naught epsilon naught for C. Mu naught epsilon naught is permittivity of free space and permeability of free space. That you know, you have covered up these topics in electric and magnetic unit. Clear? So these are the three properties. Now अब इसमें बोर्ड फिलअप हो चुका है, इसलिए मैं वन बाय वन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ, बेटर रहेगा. चलो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन 3 प्रॉपर्टीज़ को. अभी टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ हैं. मैनी मोर प्रॉपर्टीज़ आर कम टू नो. सो हियर electromagnetic wave exhibit electric and magnetic, E electric, B magnetic field, magnetic waves perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation. So first of all, आपने कभी भी इंटरनेट पे अगर आप देखोगे तो डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगे. यहाँ पर x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड द थर्ड वन इज z डायरेक्शन. ओके, सो होता क्या है कि अगर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव है ये टाइम वेरिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पर अगर आपने नोट डाउन करना है तो इसको नोट डाउन कर लेना. दीज आर द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स. तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी. ये मैंने अपने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, दैट ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक एसिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकता है. ठीक है, तो वो मैंने डिस्कस कर लिया. दैट मीन्स टाइम वेरिंग होना चाहिए, टाइम के अकॉर्डेंस में वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए चार्ज पार्टिकल का. क्लियर? अब देखो यहाँ पर ये टाइम वेरिंग है, दैट मीन्स ऑसिलेटरी मोशन भी है. ऑसिलेटरी मोशन इज़ पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साइन टर्म्स एंड कॉस टर्म्स. क्लियर? तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेव को अगर लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक वेव को इस तरीके से लिख सकते हैं, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. ये के यही है जो मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी में यूज़ किया हुआ है. दैट के इज़ व्हाट? के इज़ नोन एज प्रोपगेशन कांस्टेंट. एक्स इज़ द एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट. ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड इन पॉइंट नंबर 2 and t is time. Here E naught is the maximum value, the peak value of electric field. Just like the AC wave equation जो आप यूज़ करते थे उसी तरीके से यूज़ हो रहा है. प्लस ऑसिलेशन एंड वेव चैप्टर में आपने जो प्रोपगेटिंग वेव्स होती थी, प्रोग्रेसिव वेव जिसे हम कहते हैं, आपने उसमें कई टाइप की वेव्स पढ़ी थी. स्टेशनरी वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स एंड मोर वेव्स आर देयर. लाइक बेसिकली आपने जो ये 2 टाइप की वेव्स पढ़ी थी और आपने बीट्स, ये सारी डेरिवेशंस भी आपने प्रॉपर्ली डिराइव की हुई है क्लास 11th में. बीट्स कैसे बनती हैं वेव्स के प्रोपगेशन से, मींस ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू. वो अभी आगे भी आएगा आपका ऑप्टिक्स में. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू एक प्रोपगेटिंग वेव को हम डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ ये जो बेसिक इक्वेशन है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ प्रोपगेटिंग वेव. प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव का मीन्स होता है जो मीडियम में आगे मूव कर रही हो, दैट वेव इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव. सो हियर
E is equal to E naught sin kx minus omega t, where k and omega both are these terms given in point number 2. Clear? Now B should be represented by B naught in the same manner as E naught sin. Now remember that if we are considering that the net wave is moving here in z direction, जो इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव की कॉम्बिनेशन वेव होगी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, वो अगर z डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक वेव x में है, देन इट इज श्योर दैट मैग्नेटिक वेव शुड बी इन द y डायरेक्शन. क्लियर? तो मैग्नेटिक वेव y डायरेक्शन में हो गई और इलेक्ट्रिक वेव x डायरेक्शन में हो गई, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? z डायरेक्शन में. दैट इज हियर आई हैव मेंशन्ड हियर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी डायरेक्शन जो प्रोपगेशन ऑफ नेट वेव होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? z डायरेक्शन में. अगर मैंने ये इक्वेशन बनाई है, इसी इक्वेशन को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो. ये फिक्स नहीं है कि x डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ये इलेक्ट्रिक वेव y डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, z डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है. इन द सिमिलर मैनर मैग्नेटिक वेव z डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, x डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है. यानी हम इस इक्वेशन को कई फॉर्म में लिख सकते हैं. मैं सेकेंड फॉर्म ऐसे शॉर्ट में दिखा देती हूँ. दिस वन इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, एक ये हो गई, और B इज इक्वल टू B नॉट साइन के वाई माइनस ओमेगा टी. मीनिंग समझ आया? अब अगर इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन में जो रिजल्टेंट वेव होगी वो z और y को छोड़ के जो नेक्स्ट लास्ट एक्सिस बचा उसमें मूव कर रही होगी, दैट मीन्स x एक्सिस में मूव कर रही होगी. तो इन इक्वेशन का मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है x. इन इक्वेशन का मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है z. आप बात आ रही समझ में? तो मीन्स व्हाट कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव होती हैं एक दूसरे के ओवरऑल परपेंडिकुलर होनी चाहिए. z और y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, x और y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. ठीक है? और जो इनकी रिजल्टेंट वेव बनेगी दैट शुड ऑल्सो बी द परपेंडिकुलर टू बोथ, दैट मीन्स इट इज़ द 3 डायमेंशनल फिगर. पॉइंट इज़ क्लियर टू यू? तो जो इसकी रिजल्टेंट वेव होगी, यानी अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करनी है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक वेक्टर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर जिसे हम कहते हैं, और उसका पर्टिकुलर नेम है पॉइंटिंग वेक्टर. दैट इज कॉल्ड द पॉइंटिंग वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिस्ट. सो हियर द पॉइंटिंग वेक्टर, और इन योर लेवल वी कैन से इट एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर, दैट शुड बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जब क्रॉस होगा तो क्रॉस में आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में कि इसका B वेव का जो डायरेक्शन होगा और E वेव का जो डायरेक्शन होगा उसके ओवरऑल परपेंडिकुलर में आएगा. फॉर एग्जाम्पल टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस R. क्लियर? तो F क्रॉस R, वैसे तो इसे R क्रॉस F लिखते, इट शुड बी R क्रॉस F. क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी R क्रॉस F इज़ नॉट इक्वल टू F क्रॉस R, इट इज़ माइनस ऑफ F क्रॉस R. सो दीज आर द क्रॉस प्रोडक्ट. मीन्स वॉट? R का डायरेक्शन F का डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा टाउ का डायरेक्शन. सो इन द सिमिलर मैनर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर डायरेक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ E एंड B वेव. पॉइंट इज क्लियर टू यू? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पे मेंशन किया हुआ है, दैट द रिजल्टेंट वेव शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेव्स एंड बोथ द वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब नेट पे देखोगे अगर तो डायरेक्शन आपका इसी तरीके से बना हुआ, तो बहुत अच्छी कलरफुल फिगर दी होती है. आई विल जस्ट शेयर इट अलॉन्ग विद दिस वीडियो, द कलरफुल वेव डायरेक्शन. वो वेव डायरेक्शन जस्ट फॉर अट्रैक्शन इस तरीके का बना हुआ होता है कि आपको प्रॉपर्ली क्लियर होता है 3 डायमेंशनल फिगर. यहाँ मैं बोर्ड पे उतना क्लियर नहीं बना पाऊँगी, बट नोट इट डाउन. आई थिंक दैट यू हैव this concept is clear to you, and if you have any query you can ask in this point number 1. I am explaining only the point number 1 here. So this one is electric and magnetic waves, and now on the basis of this equation जो मैंने सबसे पहले ली थी, इस equation के basis पे मैं यहाँ पर wave direction form करूँगी. इसको मैं रब कर दे रही हूँ. So first of all E wave should be in x direction. So E wave हम इसे ऐसे बना रहे हैं, ये दिस इज़ E वेव, ये हॉरिजॉन्टल मैनर में बन गई. 3 डायमेंशनल फिगर ट्राई की जा रही है 2 डायमेंशनल प्लेन में, दैट इज़ बोर्ड के प्लेन में.
ये बोर्ड का प्लेन तो 2 डायमेंशनल है, इसमें वाई एक्सिस दिख रहा है, एक्स एक्सिस दिख रहा है, ये तो 2 डायमेंशनल है और हम बना रहे हैं 3 डायमेंशनल फिगर। तो एक्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल लेवल को। अब वर्टिकल लेवल आ गया। सो वर्टिकल लेवल पे बी वेव है, वाई एक्सिस पे बी वेव है। सो बी वेव हियर इन दिस मैनर। ओके, दिस वन इज बी वेव। सो ई वेव एंड बी वेव बोथ आर, अगर हम इसमें हम पीक वैल्यू, ये जो ई नॉट वैल्यू है और ये है पीक वैल्यू बी नॉट, ई नॉट और बी नॉट की एंगल देखेंगे तो दिस शुड बी 90 डिग्री, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही? इस यहाँ पर देखोगे अगर तो आपको पता चलेगा कि ये बी वेव ऊपर की डायरेक्शन में है और ई वेव नीचे की डायरेक्शन में इस तरीके से है। ठीक है, तो ई वेव और बी वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्लियर? तो दिस वन इज़ द फिगर, और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी फिगर आपकी इंटरनेट में भी दी हुई है, उसको भी मैं शेयर कर दूँगी इस वीडियो में ताकि आपको क्लियर हो पाए 3D कॉन्सेप्ट। तो ये ई और बी वेव इस वेव के वेव इक्वेशन के फॉर्म में मैंने बनाई है, और इसका मीनिंग ये हो गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो z डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। ओके, दिस मीन्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन z डायरेक्शन। क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? ओके, फोकस ओवर दिस। न्यूमेरिकल जब बनते हैं तो आपको ये इस इक्वेशन में आपको ये टर्म्स देखने होंगे, वॉट एवर टर्म्स आर यूज्ड हियर, x y, you will find the final result on the basis of these term, and as I have given the formula here that the known as that vector is known as pointing vector, डॉलर के साइन का बनता है वो, that should be E क्रॉस B। पॉइंटिंग वेक्टर E क्रॉस B होता है, यानी आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके आप प्रोपगेशन वेक्टर को निकालोगे जो z डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि क्रॉस में एक अगर y x में दूसरा y में, तो तीसरा थर्ड वेक्टर जो होगा प्रोडक्ट वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट, दैट शुड बी इन द z डायरेक्शन। उसी तरीके से अगर इस इक्वेशन में हम निकालेंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट, सो z और y का क्रॉस प्रोडक्ट x डायरेक्शन में आएगा। इन द सिमिलर मैनर आपने x y ले लिया, y z ले लिया, तो बचता है z x। अगर आपने e और b को z x में लिया हुआ है, z एंड x में, तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो y डायरेक्शन में आएगी। सो आई थिंक दैट दिस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू। ओके, एंड नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। ओके, चलो सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। व्हाट इज़ गिवन हियर द सेकेंड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ गिवन बाय दिस वन। सिंपल है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा नहीं है एक्सप्लेन करने में जैसा फर्स्ट पॉइंट था। सो कम टू द सेकेंड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ दिस वन। तो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ली थी, चाहे हम ई इक्वेशन लें या बी इक्वेशन लें, उसमें साइन के अंदर के जो टर्म्स होते हैं जैसे के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये टर्म दिया हुआ था, इस पूरे टर्म को हम कहते हैं ऑगमेंट। मैथ्स की लैंग्वेज में जो मैथ्स वाले बच्चे उनको पता होगा, दिस टर्म इज कॉल्ड ऑगमेंट। ऑब्वियसली दिस टर्म इज द कांस्टेंट टर्म। जो साइन थीटा होता है, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर? सो थीटा इज द कांस्टेंट टर्म, तो आप यहाँ पर इसी कांस्टेंट को यूज़ करोगे। दिस टर्म इज कांस्टेंट टर्म, और ये इस टाइप की इक्वेशन आपको आगे भी सॉल्व करनी होगी, मॉडर्न फिजिक्स में भी एंड वेव ऑप्टिक्स में भी। ठीक है, द सेकेंड चैप्टर ऑफ NCERT सेकेंड बुक। सो के एक्स माइनस ओमेगा टी इज कॉन्स्टेंट, वी विल यूज दिस टर्म एंड वी कैन प्रूव दिस फॉर्मूला। सो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, so by differentiating, because k is a constant, so k comes outside, dx by dt minus omega is a constant, dt by dt with respect to time, we are differentiating with respect to time. Okay, so that should be the constant differentiation is 0. So dx by dt is v, so kv minus of omega dt by dt is 1, that should be equal to 0. So v is equal to omega, इस साइड आएगा omega by k। प्रूव्ड। दैट मीन्स जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, dx by dt इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ओमेगा बाई के। यानी इलेक्ट्रिक वेव के लिए भी ओमेगा बाई के है, तो मैग्नेटिक वेव के लिए भी ओमेगा बाई के है। आ रही बात समझ में? अगर आप मैग्नेटिक वेव में लोगे तो मैंने क्या लिया था,
के वाई माइनस ओमेगा टी, तो वाई डी वाई बाई डी टी भी वी ही होगा, वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक वेव। तो वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक वेव भी कितनी आएगी, ओमेगा बाई के, यानी दोनों वेव सेम वेलोसिटी से मीडियम में प्रोपगेट कर रही हैं। वी है तो मीडियम में प्रोपगेट कर रही है। अगर मैंने सी लिया होता तो वो क्या होता कि स्पेस में, वैक्यूम में, दैट आर प्रोपगेटिंग इन वैक्यूम। तो इसी v को हम लिख सकते हैं, इफ़ इट इज़ इक्वल टू c, दैट मीन्स द वेव इज प्रोपगेटिंग इन वैक्यूम, देन इट मस्ट बी ओमेगा बाई के। क्लियर है। अब ये जो ओमेगा टर्म है और ये के टर्म है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट आर दीज टर्म्स। सो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 2 पाई बाई टी। अभी ये वेव ऑप्टिक्स में मैंने जैसे आपको बताया काम आने वाला है, इसलिए छोड़ना नहीं है। सो 2 पाई बाई टी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई न्यू। न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, टी इज़ द टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन वेव, एंड न्यू मीन्स व्हाट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड वेव नंबर, दिस शुड बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। बहुत यूज़ होने वाला टर्म है, अभी आगे आना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। यंग मॉड्यूलस है, कौन सा था आपका, नॉट यंग मॉड्यूलस, दैट इज़ यंग्स एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी दैट इज़ यंग्स एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, यंग्स एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके बेसिस पर फ्रिंजेस पता चली थी, तो उसमें अभी ये टर्म्स आने इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दिस इज़ 2 पाई बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज़ द वेव लेंथ, तो इसको हम कहते हैं वेव नंबर। व्हाट इज़ वेव लेंथ हियर, इफ़ इट इज़ अ वेव देन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 consecutive crest or 2 consecutive trough is called wavelength. So this k wave number is 2 pi by lambda, no other formula, 2 pi by lambda. Clear? So what is the unit of k? K unit should be meter inverse in SI system. Lambda unit, lambda is a type of length, it generally introduced in the form of angstrom, but here if we are talking about the SI system unit, then it will be meter inverse, and its unit is the second inverse unit because it is 1 over t. 2 pi doesn't have any unit, that means what, t is second, so 1 over t is second inverse. Clear? तो ये आपके दो टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सेकेंड पार्ट में, और न्यूमेरिकल के पर्पज़ से एज वेल एज आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ऑप्टिक्स के पर्पज़ से। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, that velocity of electromagnetic wave in equilibrium condition is represented by v is equal to e by b. equilibrium condition कुछ रिकॉल करो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक, तो आपने कुछ इस तरीके की वेलोसिटी सेलेक्टर में पिक ली थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया था, दैट चार्ज इज मूविंग हियर इन दिस डायरेक्शन, x डायरेक्शन with velocity v, and the electric field here in this direction, the magnetic field here in this direction. So the force, electrical force applied over it is Fe, along with the electric field it is a positive charge, and the magnetic force applied over it is, this one is B, this one is V. So magnetic force means Lorentz force, F is equal to Q V cross B, क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मीन्स फोर्स शुड कम परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, तो वी और बी का एक्सिस ये है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा, दिस वन. सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, and in equilibrium the both forces are equal and opposite, so Fe should be equal to Fb. Fe means E जो आपका चार्ज है वो आपने Q लिया हुआ है, चलो Q, और E हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और Fb की वैल्यू हो जाएगी QVB साइन थीटा. ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से अगर निकालोगे वैल्यू तो Q एंड Q कैंसिल एंड V इज इक्वल टू E बाई बी. ये वेलोसिटी सेलेक्टर का फॉर्मूला आपने प्रूफ किया था इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जब दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं. सो दैट इज द सिचुएशन दैट यू गॉट द फॉर्मूला E बाई बी. गॉट माई पॉइंट? नाउ कम टू दिस फॉर्मूला, दिस वन, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस टर्म. तो ये टर्म कहाँ से आया? ये टर्म आपका, मैं इसको रब कर दे रही हूँ, जो ये टर्म आया था आपका, ये टर्म वैल्यूज से आया है, बिकॉज यू नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 9 10 टू द पावर 9 एंड म्यू नॉट ओवर 4 पाई दैट टर्म इज. तो अगर आप इसमें से वैल्यू पुट करते हो, यहाँ पर ये वैल्यू निकालोगे, आप इसको डिवाइड कर रहे हो इन दोनों इक्वेशन को, तो आपका आएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट.
4 pi and 4 pi cancelled, and you will get this term, division of these two, 10 to the power minus 7 over 9 10 to the power 9. Okay, so you will get this term as mu naught epsilon naught is equal to 1 over 9 10 to the power 16. 9 plus 7 is 16. ये जब नीचे आएगा तो ये वैल्यू जो आ रही है, दिस इज़ 1 over c स्क्वायर, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर है ये टर्म. सो दैट मीन्स वॉट, दैट c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट. तो इसी जो वैक्यूम में क्योंकि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट यूज़ करते हैं, तो मीडियम में हम यूज़ करेंगे एप्सिलॉन एंड म्यू. सो दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू v. ओके, तो यहाँ से आपका रिजल्ट निकल करके आया था कि ये दो फॉर्मूले भी वेलोसिटी के ही होते हैं. सो दैट मीन्स यू गॉट ओवरऑल 3 फार्मूला corresponding to the electromagnetic wave velocity, v this one, v this one, v this one. It is sure that if electric wave is moving with v velocity, magnetic wave is moving with v velocity, it is sure that electromagnetic wave must move in the with v velocity. Okay, and if we are talking about vacuum, their electromagnetic wave must move with the c velocity, as well as E and B wave also moves with the c velocity. क्लियर है? अगर आप किसी स्पीड से जा रहे हो और आपके हाथ में एक बॉल है, आपने बॉल को अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है, तो बॉल की भी स्पीड वही होगी, पर्टिकुलर स्पीड वही होगी जो आपकी स्पीड है. ठीक है, आप ट्रेन के अंदर हो, ट्रेन जिस स्पीड से जा रही है, आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, तो आपकी स्पीड वही है जो ट्रेन की स्पीड है. ठीक है, सो सेम इज़ द केस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड भी वही होगी जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव की स्पीड है. सो दैट इज़ ओवरऑल द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन these two conditions. So we have discussed first point, second point and third point, and I am very sure that this concept is simplified to you, and this concept you will never forget in future. This fourth point is EM wave is transverse in nature. So transverse wave कौन सी होती है, longitudinal wave कौन सी होती है? बेसिकली आपने 9th क्लास में जब पढ़ा था that longitudinal waves are those waves that can travel in solid, liquid and gaseous medium. These are longitudinal wave. Transverse waves are those waves which travels into the solid medium and the surface of liquid medium. That are the basic characteristic difference between the transverse and longitudinal wave. One more basic characteristic, that in transverse wave the medium particle, if we are talking about transverse wave, the medium particle vibrate perpendicular to the propagation of wave. If the wave is moving here in this direction, then medium particles are propagating perpendicular. ठीक है, तो ऐसा हो रहा है यहाँ पर. दूसरा, आप अगर longitudinal वेव की बात करते हैं, so longitudinal wave the medium particles vibrate this way along with the direction of propagation of wave. That means they vibrate to and fro this way. जो wave जा रही है वो ऐसे जा रही है, this one. The example is sound wave. So the medium particles are vibrating to and fro along with the propagation of wave. Clear? तो वैसा तो यहाँ होता ही नहीं है. अभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई प्रोपगेशन की. फर्स्ट जो पॉइंट था उसमें बताया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर जो होते हैं वो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. तो परपेंडिकुलर होने का मीनिंग ये है, और जो ओवरऑल प्रोपगेशन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है. सो दैट मीन्स व्हाट कि ओवरऑल दे आर वाइब्रेटिंग, द मीडियम पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव. ठीक है, तो इसलिए ट्रांसवर्स नेचर की, और ये ट्रांसवर्स नेचर हमें मीडियम में ही पता चल पाएगा. दैट मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सॉलिड, लिक्विड या गैसेस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तभी हमें पता चल पाएगा कि उसमें कैसा नेचर है वेव का. तो मीडियम होना चाहिए. ठीक है, तो यानी यहाँ एक कन्फ्यूजन आपको यहाँ आती है कि light wave, which is the example of electromagnetic wave that can travel in solid, liquid and gaseous medium too, but in spite of the fact that gaseous medium में भी पास हो सकती है, but ये होता है, इसका नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स, because of the electric and magnetic vibration and the propagation of overall electromagnetic wave. Clear? Now come to the fifth point. Electric and magnetic fields sustain each other in vacuum. अगर आपको हवा में खड़ा कर दिया जाए तो क्या आप वहीं रुक जाओगे, हैंग हो जाओगे? नो, आप गिरोगे नीचे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू मूव कर रही हैं. मीडियम में कौन से पार्टिकल्स? चार्ज के थ्रू.
चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हैं जिनके बेसिस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव मूव कर रही हैं। पर वैक्यूम में क्या होगा, वैक्यूम में जो चार्ज पार्टिकल कोई ट्रैवल भी कर रहा होगा वो रुकेगा तो है नहीं, वो गिर सकता है, उसमें मास है। बट मूविंग चार्ज पार्टिकल इतना लाइट हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल विच हैज़ सम एक्सेलरेशन, इतना लाइट हो जाता है कि उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव एक दूसरे को होल्ड कर सकती है, यानी एक दूसरे को होल्ड करते हुए ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। सस्टेन का बेसिकली मीनिंग ये है कि ये वैक्यूम में भी हैंग हो सकती हैं और ट्रैवल कर सकती हैं, जबकि कोई भी मास बॉडी वैक्यूम में हैंग नहीं हो सकती, सस्टेन नहीं कर सकती। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये वैक्यूम में भी हैंग हो जाती हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? इनकी एनर्जी अभी आगे एक 10th पॉइंट रह गया, उसमें मैं बताऊंगी। ई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ये रिलेटिविटी का फॉर्मूला है, ठीक है। ये एम नॉट रेस्ट मास होता है। तो अगर रेस्ट मास की बात की जाए तो रेस्ट मास में तो क्या होगा, ग्रेविटी एक्ट करेगी, उसका वेट होगा मास का, जो चार्ज पार्टिकल जिसके थ्रू ये एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के थ्रू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही हैं। बट वैक्यूम जहाँ पे कोई मीडियम पार्टिकल नहीं है, जहाँ पर फ्री स्पेस है, वहाँ पर क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द ग्रेटर स्पीड, हाई स्पीड, इट कैन सस्टेन इन वैक्यूम। जैसे कि जस्ट लाइक द केस ऑफ एरोप्लेन स्पीड इज़ वेरी हाई, सो in spite of the higher mass, greater mass of aeroplane, it can create a pressure difference and it can sustain in air। तो वहाँ तो एयर है, एयर का प्रेशर लग रहा है, बट इनके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एयर की भी रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज द पार्टिकल मास इज़ वेरी स्मॉल। विच पार्टिकल मास? द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मास इज़ वेरी स्मॉल एंड दैट इज़ वाई दे कैन सस्टेन, दे कैन हेल्ड, दे कैन हैंग इन द वैक्यूम। ओके, गॉट माई पॉइंट? Without any pressure, without any application of pressure, air pressure, without any application of any other field, any other gravity kind of field, it can sustain in vacuum. So this one is the 5th point and 5th property. Now come to 6th point. Velocity of electromagnetic wave in medium is represented by this one, depends on the medium quality, because you know that C is equal to, I have explained it in point number 3, property of electromagnetic wave। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया था मैथमेटिकली, ठीक है। और इस फॉर्मूले से आपने ये पता कर लिया था स्पीड ऑफ लाइट तो इतनी होती है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। गॉट माई पॉइंट? अब इसी फॉर्मूले के सिमिलैरिटी में अगर कोई मीडियम, ये तो वैक्यूम में है, दिस वन इज़ इन वैक्यूम। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी मीडियम, then V should be converted into C should be converted into V and it will be represented by mu epsilon। mu is permeability of medium, और medium के particles, medium की density, medium की अपनी characteristics पे depend करता है कि permeability कितनी होगी, medium कितना परमिशन देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड को, कि वो उस मीडियम के थ्रू पास ऑन हो जाए। उसी तरीके से एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दैट मीन्स परमिटिविटी उसको परमिशन देगी इलेक्ट्रिक फील्ड को कि वो पास ऑन हो जाए। यानी मैग्नेटिक फील्ड परमिशन मांग रही है म्यू से और इलेक्ट्रिक फील्ड परमिशन मांग रही है एप्सिलॉन से, सो दैट दे कैन पास थ्रू द मीडियम। हियर दिस वन इज ग्लास मीडियम एंड लाइट रे इज पासिंग थ्रू ग्लास। तो जो एयर में स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट सी होती है, लेकिन जब यहाँ आती है तो स्पीड कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द मीडियम पार्टिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो वो स्पीड कम क्यों हुई? क्योंकि मीडियम जितनी परमिशन देगा, जितनी स्पीड देगा परमिशन के देगा, स्पीड की परमिशन देगा कि इस मीडियम के थ्रू पास ऑन हो जाए, उसी स्पीड से पास ऑन हो पाएगी। आप इसको जब ऐसे समझ सकते हो कि हाईवे पर भी स्पीड्स लिखी होती हैं, इतनी स्पीड में चलना है, तो एक परमिशन गिवन है, इस हाईवे पे इतनी स्पीड में चलना है, इस रेंज ऑफ द रोड पे इतनी स्पीड में चलना है। सो दैट इज़ अ स्पीड गिवन बाय परमिशन गिवन बाय द मीडियम, ठीक है। तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मीडियम क्वालिटी, दिस वन। क्लियर है ये पॉइंट? सो रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ लिया था, वैक्यूम में रिप्रेजेंटेशन ये होता है सी का, और मीडियम में दिस वन। ओके, नाउ कम टू 7th पॉइंट। मैथमेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ EM वेव ऑब्जर्व्ड ऑलमोस्ट सेम। अब जो मैथमेटिकल वैल्यू निकल के आई थी वो तो आपने इससे निकाल ली थी, ये मैथमेटिकल वैल्यू थी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब पुट की तो आपकी ये वैल्यू आ रही होगी एग्जैक्टली 3 आती है। बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब निकाली गई,
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ C वो आई थी 2.9979 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो आपकी मैथमेटिकल वैल्यू है, ये आप देखो दोनों में तो आपको राउंड ऑफ करने पर ये ऑलमोस्ट राउंड ऑफ होकर के 3 हो जा रहा है, तो इतना ही डिफरेंस था ये जो कि सेम है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड मैथमेटिकल वैल्यू, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नोन है, जो आपकी श्योर होती है कि ये वैल्यू ही पॉसिबल है। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। इन वैल्यूज़ को जब आप पुट करोगे तो ये रिजल्ट्स निकल करके आएंगे जो एग्जैक्ट हैं। एक्सपेरिमेंटल वाइज ये निकला है रिजल्ट जो सिमिलर है मैथमेटिकल से। क्लियर? तो मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम निकल के आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। दैट मीन्स व्हाट कि स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे किसी भी टाइप की हो, उसकी स्पीड इतनी ही होनी चाहिए। कहाँ पर? वैक्यूम में। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट वैक्यूम। और ये श्योर होता है कि मीडियम में वो स्पीड कम हो जाती है, यानी इस स्पीड से कम स्पीड ही होगी मीडियम में, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 9 पॉइंट, हायर ऑर्डर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शोज डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड रिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड रिफ्रैक्शन आर द शोइंग द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। डिफ्रैक्शन पार्टिकल नेचर के थ्रू हम नहीं बता सकते, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं, वन इज़ द पार्टिकल कैरेक्टर एंड वन इज़ द वेव कैरेक्टर। वो अभी जब लाइट चैप्टर स्टार्ट होगा, ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी व्हाट आर द पार्टिकल एंड वेव नेचर। तो ये जो हायर ऑर्डर वेवलेंथ्स होती हैं कौन कौन सी हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद माइक्रोवेव, अगर हम IR को छोड़ भी देते हैं तो माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, टेलीविज़न वेव्स, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हायर ऑर्डर वेवलेंथ की कहलाती हैं। इन हायर ऑर्डर वेवलेंथ की वेव्स को में ये डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये फिनोमेना हो रहा है तो हम इन वेव्स को एज अ कैरियर वेव्स यूज़ कर सकते हैं। तो जो हाई वेवलेंथ वेव्स होती हैं उसको हम कैरियर वेव की तरह यूज़ करते हैं, और वो कैरियर वेव कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। जैसा मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि कैरियर वेव की तरह ये सिग्नल्स को रैप करके मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, जिसको हम शॉर्ट में मॉडेम भी कहते हैं, मॉडेम के थ्रू, मॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू ये ट्रांसमीटर से रिसीविंग एंड तक पहुंचा सकती हैं। तो ये क्वालिटी कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप यहाँ नोट कर सकते हो, दैट दीज क्वालिटीज़ आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन। क्लियर? तो हायर ऑर्डर वेवलेंथ को हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, ना कि लो ऑर्डर वेवलेंथ को। यानी एक्सरे इज़ अ लो ऑर्डर वेवलेंथ। एक्सरे की वेवलेंथ कम होती है, इट इज़ 0.1 to 1 एंगस्ट्रॉम। तो एक्सरे की वेवलेंथ को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। एक्सरे इज़ यूज्ड इन फॉर द मेडिकल पर्पस, ठीक है। एक्सरे को कम्युनिकेशन यानी लॉन्ग रेंज में थ्रो करने के लिए हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर हम यूवी रेज़ की बात करें तो यूवी रेज़ को हम कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम कम्युनिकेशन में कौन सी वेव को यूज़ कर सकते हैं? रेडियो वेव को, शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव को, या माइक्रोवेव को भी हम रेयरली यूज़ कर पाते हैं। तो ये जो हायर ऑर्डर वेवलेंथ है, रेडियो वेव्स की बात अगर हम करें या टेलीविज़न वेव्स की बात करें, दैट आर ओनली पॉसिबल टू ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम फॉर लॉन्गर रेंज वैल्यूज़। Got my point? So this is the characteristic, 9th characteristic of electromagnetic wave. Now come to the 10th characteristic, which is the main theme of all the characteristics. चलो बात करते हैं उस पर 10th पॉइंट पर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हुए आगे बढ़ती है। दैट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। EM वेव propagate through transfer of electric and magnetic energy। क्या वैल्यूज़ होती हैं? अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी में क्या डिफरेंस है? एनर्जी डेंसिटी इज़ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो बेसिकली हम एनर्जी डेंसिटीज़ लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u e, दिस इज़ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
एंड दिस इज़ हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये होती है एनर्जी डेंसिटी फॉर द इलेक्ट्रिक वेव। मैग्नेटिक वेव ये आप प्रूव कर चुके हो कैपेसिटर चैप्टर में। उसी तरीके से मैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस इज़ 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। फॉर्मूले भी सिमिलर होते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1/2 म्यू, हाफ तो दोनों में है, 1/म्यू नॉट हो गया बी स्क्वायर। ये वैल्यूज़ होती हैं एनर्जी की। तो ऐसा हो रहा होता है, अभी जो मैं फिगर आपको शो करूँगी उसमें देखना कि ऐसा हो रहा होता है यहाँ पर क्या कि इलेक्ट्रिक वेव ऐसे मूव कर रही है, मैग्नेटिक वेव ऐसे मूव कर रही है, दिस वन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गई, क्लियर। अब इसमें होगा क्या कि इलेक्ट्रिक वेव एक बार जब ट्रैवल की तो अपनी एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसने मैग्नेटिक वेव को दे दिया, मैग्नेटिक वेव ने एनर्जी यूज़ की, कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस इलेक्ट्रिक वेव को दे दी। दैट मीन्स वो एक दूसरे को एनर्जी की शेयरिंग कर रहे होते हैं और इस तरीके से वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, यानी शेयरिंग ऑफ द एनर्जी से इनका प्रोपगेशन हो रहा होता है वैक्यूम में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव का। जो मैंने आपको सस्टेन वाला पॉइंट बताया था, सस्टेन इसी तरीके से करी होती है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक दूसरे को जैसे बॉल ट्रांसफर करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो दैट इज़ द कंडीशन हियर। Just correct one thing, this after 7th the point was 8th point and this one is the 9th point। अभी एक पॉइंट और रह गया आपका, तो अभी ये 9th पॉइंट चल रहा है, ये वाला 8th पॉइंट था, मैं डिसऑर्डर हो गया था यहाँ पर, वो करेक्ट कर लेना और डोंट वरी अबाउट इट। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हुए मूव कर रही होती हैं, तो एक तरीके से इनमें एनर्जी भी है और दूसरा मोमेंटम भी है, क्योंकि ये मूव कर रही हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू velocity, that is a momentum। so momentum P is equal to mass into velocity। अगर हम C के फॉर्म में लिखेंगे तो M into C हो जाएगा, mass into C, velocity of light in vacuum C। तो दोनों ही करेक्ट है। ये ध्यान रखो कि V और C में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आगे भी काम आना है। तो मोमेंटम ये है, अब इनकी स्पीड भी है और इसमें एनर्जी भी है, तो मोमेंटम भी है और एनर्जी भी है, और ये क्या कर रहे होते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं दिस वे, ठीक है। ऐसे ये ट्रांसफ़र करते हुए आगे बढ़े होते, तभी ये अपने आप को लाइट फील कर पाते हैं, अदरवाइज़ इसमें हैवीनेस होगी तो वैक्यूम में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पॉइंट समझ लो इसको अच्छे से। तो होता क्या है कि ये जो एनर्जी है, इस अगर इन दोनों एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया जाए, E इज़ UE इज़ इक्वल टू UB, ये क्योंकि ये आपस में ट्रांसफ़र कर रही है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी, तो E से अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें देन E इज़ इक्वल टू P इंटू C। ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम का। मोमेंटम हेयर इज़ P, ठीक है, P हेयर इज़ मोमेंटम एंड C इज़ स्पीड of EM wave in vacuum, okay। E is energy of EM electromagnetic wave, energy of EM wave। तो इनका आपस में रिलेशन है E इज इक्वल टू PC, और ये रिलेशन कहाँ से आया, जो मैंने अभी पहले आपको इक्वेशन बताई थी वहीं से आया है। E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C टू द पावर 4। जो रेस्ट मास होता है वो ज़ीरो हो जाता है इसमें, इसलिए ये रेस्ट मास से ज़ीरो हो गया, तो आपका फॉर्मूला आ गया E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर, दैट इज़ E इज इक्वल टू PC, ठीक है। यहीं से निकल के आया है फॉर्मूला। तो एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है, ठीक है। और इसी को लिंक करके अगर आप सोचो, अब मैं मॉडर्न फिजिक्स की तरफ थोड़ा सा आ रही हूँ, कि इसी को लिंक करके अगर आप सोचो, केमिस्ट्री में आपने एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों एक साथ जज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। यही चीज़ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ रही है कि एनर्जी और मोमेंटम हैं, एक साथ हैं, लेकिन हम इन दोनों की ऑब्जर्वेशन को एक साथ नहीं कर पाएंगे, यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों होता है, बट दोनों को एक साथ वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता है। सो दैट इज़ द 9th पॉइंट, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है ये सारे, इनको अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो दिस वन, I hope this point is clear to you, and come to the last point, that is point number 10, and 10th point is that
because it carries energy, because it carries momentum, so that is why it can exert pressure to any surface. एक छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर आप सनशाइन में बैठे हुए हो, धूप में बैठे हुए हो, तो आपको अपनी बॉडी में सन रेज़ की एनर्जी फील हो रही होती है, एक पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। प्रेशर कब लगता है? जब कोई चीज़ फोर्स लगा रही हो। फोर्स कब होगा? जब किसी चीज़ के पास एनर्जी हो। जैसे एक क्रिकेटर बॉल खेल रहा है, बॉल कैच कर रहा है, तो बॉल कैच करने में जब बॉल स्पीड से आ रही होती है, किसी ग्रेटर स्पीड से आ रही होती है, तो उसका प्रेशर हैंड में लगता है और उसी प्रेशर को, उसी फोर्स के कोरेस्पॉन्डेंस में ही प्रेशर आता है, उसी फोर्स को रिड्यूस करने के लिए कैच करते समय वो अपना हैंड पीछे करता है। ये न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डेंस में हो रहा होता है, ठीक है। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, कि जब एनर्जी है और स्पीड है तो जिस भी सरफेस से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट करेगी, जस्ट लाइक आवर बॉडी, आवर स्किन, तो वो एक फोर्स से आते हुए हमारी स्किन पे इंसिडेंट होगी और उस स्पीड के बेसिस पर ही यहाँ पर हमारी स्किन पे प्रेशर लगेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हमने सनलाइट के आगे अपना हैंड ऐसे किया तो हमारा हैंड पीछे हो जाए, यानी उस पर इतना ग्रेटर फोर्स तो नहीं लगता कि हाथ हमारा पीछे हो जाए, यानी वो फोर्स या वो प्रेशर कहीं ना कहीं बहुत मैन्यूट है। तो 10th पॉइंट यही कहता है दैट प्रेशर विच इज़ कॉल्ड द रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर P is equal to F divided by A, where A is surface area, हमारे हैंड का सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। सो सरफेस एरिया की कोरस्पॉन्डेंस में जो फोर्स लग रहा होगा उसी के कोरस्पॉन्डेंस में हम प्रेशर बता सकते हैं इनडायरेक्टली। वेर एवर देर इज़ अ फोर्स देर इज़ अ प्रेशर, सो दैट प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर इज़ वेरी लेस, दैट वैल्यू इज़ ऑलमोस्ट 10 to the power -6 दैट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज़ पैस्कल, ठीक है। तो 10 to the power -6 पैस्कल का प्रेशर लग रहा होता है किसी सरफेस पे, डिपेंड करता है उस सरफेस का एरिया कैसा है किसी सरफेस पर, और इस प्रेशर के थ्रू ये अब रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सरफेस पर अपना फोर्स लगा रही होती है। एक और एग्जाम्पल देते हैं ऑप्टिक्स का। अगर आप एक पेपर लो, पेपर शीट, ठीक है, और आप उसके आगे कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, कॉन्वेक्स लेंस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। सनलाइट बिकॉज इट इज़ कमिंग फॉर वेरी फार प्लेस, सो इट इज़ पैरेलल टू द लेंस, convex lens. If the paper is placed exactly at the focus point of that convex lens, it is sure that after some time, it takes some time, after some time the paper that starts burning, okay, वो पेपर जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि सन रेज जब आ रही थी तो हमने उसका एरिया कम कर दिया, उसको कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट पर सारे का सारा लाइट रेज फोकस हो जा रही हैं। जब एक पॉइंट पे फोकस हो जा रही है तो सोचो इतनी एनर्जी और इतनी स्पीड से वेव्स, लाइट रे उस पेपर पे फॉल कर रही है एक पॉइंट पर, तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी एंड दैट्स वाई द पेपर स्टार्ट्स बर्निंग बिकॉज ऑफ वी हैव कन्वर्टेड दैट एरिया लिमिटेड। एरिया कम होने पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा और वो इतना प्रेशर होगा कि वो हीटिंग इफ़ेक्ट जनरेट कर देगा। तो हीटिंग इफ़ेक्ट जनरेट करने के बेसिस पर ही की वजह से ही क्या होगा कि पेपर बर्न करना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेडिएशन प्रेशर। तो प्रेशर होता है लेकिन वो प्रेशर नॉर्मल लेवल पे इतना माइन्यूट होता है 10 to the power -6 के ऑर्डर का दैट वी can't experience, but yeah, it is sure कि we grasp energy, we grasp force from the radiation. Okay, got my point? So these are the 10 properties of electromagnetic waves. I hope that you have written all these points and all the concepts, all the base of these points are very clear to you and you will never forget it. So thanks for today, and the last topic, electromagnetic spectrum along with the numerical, क्योंकि आज एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो बहुत छोटा एक इन्फॉर्मेटरी टॉपिक है आपके लिए। उस इन्फॉर्मेटरी टॉपिक में हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे, तो वो 10 मिनट्स के बाद मैं बाकी के 15-20 मिनट्स न्यूमेरिकल आपको इस टॉपिक पे करवा सकती हूँ जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं
बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं वो, ये श्योर रखना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा सा हाई, बहुत थोड़ा सा हाई है। तो आपने क्या करना है कि बस सिंपली अभी जो मेरे ये 3rd लेक्चर था, ये 3 लेक्चर्स हुए, इनको अच्छे से रिव्यू कर लो और नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसको अप्लाई करना है, इस कॉन्सेप्ट को। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे एंड नेक्स्ट आई विल कम विद द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।